Hi friends, I am Pinakin and today I am here to explain chapter number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom from your book First Flight. But before we start, let me give some information or introduction about the chapter. Nelson Mandela, we might have heard the name. He was a very famous person, belonged to South Africa. And this chapter is taken from his autobiography. Its name is Long Walk to Freedom. Autobiography means a life story written by the person himself. माने अपने खुद की आत्मकथा लिखना उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, अपनी जीवन कथनी. अब let me tell you something more about Nelson Mandela because we have to study the whole chapter about him. Nelson Mandela, he was addressed as Madiba because he belonged to a Xhosa clan. He belonged to a Thembu royal family. He was the first president of African Democratic election in 1994. It was the first democratic African election. Nelson Mandela served prison for 30 years for the abolition of apartheid. Now, what is this apartheid? Apartheid means racial discrimination based on skin color. माने वहाँ पे स्किन कलर के हिसाब से लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. मानी जो डार्क स्किन वाले हैं उनको ज़्यादा राइट्स नहीं मिलेंगे, वो कुछ काम नहीं कर सकते, सब जगह पे उनको एंट्री नहीं है, वो पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करते. दे वर ऑप्रेस्ड बाय द वाइट पीपल इवन दे वर नॉट गिवन सम राइट्स. मीन्स जो डार्क पीपल होते थे उनको साथ साथ में कुछ राइट्स भी नहीं मिलते थे कि भाई आप लोग ये ड्यूटीज़ कर सकते नहीं हो. नेल्सन मंडेला is also called the father of the nation in Africa because of his contribution for the abolition of apartheid, that is racial discrimination. We have to remember that what is apartheid, that might asked in your exam. Apartheid is a racial discrimination based on color. Now let's start the lesson along with explanation in Hindi and English as well as difficult word meanings. Let's start the chapter. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by the dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. In the first paragraph, in the first line, he is telling about himself that on 10th May, that is the date of ceremony, 10th May 1994, and he is telling that I had been pleasantly besieged. Word, that what is the meaning of besieged? Means surrounded closely by the people. वो किससे सराउंडेड रहते थे उस दिनों में कि बाय द डिग्निटरीज ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स. पूरे वर्ल्ड के जो डिग्निफाइड लीडर्स थे उनसे वो सराउंडेड रहते थे. हु वर बिकमिंग टू पे द रिस्पेक्ट. और वो कहाँ आए थे? हु वर कमिंग, कहाँ आए थे? तो वो रिस्पेक्ट के लिए आए थे. किसकी रिस्पेक्ट के? कि जो अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने जा रही थी उसका इनोग्रेशन हो रहा था, उसकी रिस्पेक्ट में वो लोग वहाँ आए थे. द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग
एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर ऑन द अफ्रीकन सॉइल। और ये जो सेरेमनी थी, कौन सी सेरेमनी? दिस स्वेरिंग सेरेमनी, ओथ सेरेमनी वॉज द लार्जेस्ट इवेंट, सबसे बड़ी इवेंट थी। कहाँ की? कि अफ्रीका में अब तक जो भी इवेंट हुई थी उन सब में ऐसी इंटरनेशनल जो इवेंट थी वो कभी भी हुई नहीं थी साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में, कि जिसमें इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स आए हो और वो प्रेजेंट वहाँ पे रहे हो। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Building of Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy. Now, it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South African first democratic special government. The word is given that amphitheater. What is the meaning of amphitheater? That is, it means an open air theater which is located, the name of the city is given is, it is amphitheater is located in Pretoria, that is in Africa. Other word is given that decades. Decade means 10 years and 4 decades माने बहुत सारे 10 years जब कलेक्ट होते हैं माने बहुत साल ये सब होते हुए रहा। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि ये जो सेरेमनी हो रही है वो कहाँ हो रही है? प्रेटोरिया, और ये प्रेटोरिया के एम्फी थिएटर में हो रही है, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया। और बहुत सारे डिकेड्स के माने बहुत सारे साल तक ये जो प्लेस था, ये जो एम्फी थिएटर था, दैट इज़ द वाइट सुप्रीमेसी। वाइट सुप्रीमेसी माने यहाँ पे मोस्टली वाइट स्किन लोग ही ज़्यादा देखे जाते थे। ब्लैक स्किन के जो लोग थे वो वहाँ उनको एंट्री थी नहीं थी, या तो वो फिर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ उनको देखा जाता था। आज ये वर्ड यूज़ करते हैं, नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। रेनबो गैदरिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेनबो गैदरिंग? माने यहाँ रेनबो गैदरिंग अलग अलग स्किन वाले, अलग अलग जगह से अलग अलग स्किन वाले लोग यहाँ आए हैं, माने वाइट, ब्लैक, डार्क सब लोग यहाँ पे आज देखने मिल रहे हैं। और वो इक्वलिटी का सिंबल है कि भाई यहाँ पे आज से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं, और वो भी स्पेशली स्किन कलर के हिसाब से। नेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट, और वो किसके साथ ख़त्म हो रहा है कि साउथ अफ्रीका के अंदर फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टार्ट हो रही है, उसके साथ ही ये सब डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगा, अपार्थाइड पॉलिसी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. Is on the podium. Mr. de Klerk was the first sworn as a second deputy president. वो बताते हैं कि podium. What is the meaning of podium? Podium means a stage. And he is telling that it was a lovely autumn day. Now we are thinking about that. It was 10th May, तो how can it be autumn in that? तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि अफ्रीका है वो एक सदर्न हेमिस्फीयर में है, और वो हमसे ऑपोजिट एटमॉस्फेयर, जब हमारे यहाँ मई में पूरी गर्मी चल रही होती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर की शुरुआत होने जा रही होती है, और उस विंटर की स्टार्टिंग में ही ऑटम फील होती है, ऑटम सीजन चल रही होती है। तो यहाँ पे इट इज़ डिस्क्राइब्ड दैट इट वाज अ ऑटम डे। उनके साथ कौन था? तो हिज डॉटर ज़ेनानी। कौन आया? मिस्टर डी क्लर्क, उन्होंने फर्स्ट अपने डेप्यूटी प्रेसिडेंट के ओथ लिए। देन थेम्बू मैप्की वॉज द स्वॉन इन द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर उनके बाद थेम्बू मैप्की आए,
When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic of its people, to the assembled guests and the watching world, I said. और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मेरी ओथ लेने की टर्न आई तब मैंने ओथ लिया, प्लेज लिया टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन माने हमारे जो अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा। ओबे द अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। डिवोट माई सेल्फ माने मैं अपनी पूरी पर्सनालिटी को डिवोट कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। किसके लिए? वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, अपने कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए, उन सब के लिए मैं अपना डिवोशन, अपना पूरी पर्सनालिटी डिवोट करता हूँ। टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of the extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. The word is given that confer. Confer means to give. Keep in mind, हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं कि कन्फेयर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, जो लिबर्टी अभी बॉर्न हुई है, माने जो डेमोक्रेसी यहाँ पे इंस्टॉल हुई है, वो बहुत लंबे टाइम तक रहेगी। और उसको पाने के लिए क्या हुआ है कि एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे ह्यूमंस का डिज़ास्टर हुआ है, बहुत सारे लोग डिस्ट्रॉय हुए हैं। उसके बाद जाकर हमको ये आज़ादी मिली है। और विच इज़ ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, ह्यूमैनिटी, और उसके लिए पूरी दुनिया हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर प्राउड कर रही है। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. The word is given that outlaws. Outlaws, what is the meaning of outlaws? Outlaws countries means those countries which have served diplomatic relations, severe diplomatic relations with the South African ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड। माने वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों, बहुत सारी कंट्री ने जिसने अपना रिलेशन साउथ अफ्रीका से बहुत कम कर दिया था या फिर कट कर दिया था, वो सब लोग आज हमारे गेस्ट बने हैं और हमें उनका प्रिविलेज, उनका होस्ट करने का एक मौका मिला है। वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what it after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. Or we thank all our distinguished international guests. माने वो अपना आभार प्रकट कर रहे हैं किसके लिए? कि जो हमारे इम्पोर्टेंट, डिस्टिंग्विश्ड, जो वेरी स्पेशल इंटरनेशनल गेस्ट है वो यहाँ पे आए, उसके लिए टेक दैट पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के साथ, हमारे कंट्री के लोगों के साथ रहे। और कहाँ आए हैं? उस सेरेमनी में आए हैं कि विच इज़ द कॉमन विक्ट्री। ये विक्ट्री कोई एक इंसान की, कोई एक सोसाइटी की, कोई एक ट्राइब की ये नहीं है। इट इज़ कॉमन विक्ट्री फॉर द पीपल, ऑल द पीपल ऑफ अफ्रीका, फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, जो ह्यूमन की डिग्निटी होती है उनकी है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड द पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। और लास्ट में सब कुछ ये सब सह कर हमने ये एमेंसिपेशन अचीव कर लिया है। अपार्थाइड जो पॉलिसी थी
उसको हमने ख़त्म कर लिया है और एक पूरी अच्छी सी गवर्नमेंट हमने यहाँ से स्टार्ट करने का वादा कर रहे हैं। नाउ वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discriminations. Two words are there. The first one is deprivation. What is the meaning of deprivation? We have to understand before that. Deprivation means not having a rightful benefits. माने उनको अपने जो हक होते हैं उनसे वंचित रखना. And another word is given the last in the sentence, that is discrimination. डिस्क्रिमिनेशन माने ट्रीटेड डिफरेंटली, किसी के ट्रीटमेंट के अंदर भेदभाव रखना. तो अब वो क्या कहते हैं कि वी हैव प्लेज्ड अवरसेल्व्स, हमने ये कसम खाई है कि देश में अब कोई भी गरीब नहीं होगा, किसी को भी अपने हक से अलग नहीं किया जाएगा. डिप्रीविएशन, कोई भी इंसान के साथ अब कोई भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा नहीं. माने वो ये कहना चाहते हैं कि अब हमारे कंट्री में सबको इक्वल राइट्स है, सब एक ही समान हक पाएंगे, किसी को कोई भी स्पेशल राइट्स मिलेगा नहीं. एंड दैट इज़ द रियल लिबर्टी एंड दैट इज़ द रियल अचीवमेंट फॉर द नेल्सन मंडेला. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. वो कहते हैं कि never, 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 कभी भी इस देश की ज़मीन पर, इस धरती पर किसी को भी यहाँ ऑप्रेस माने एक्सप्लॉइट करना, किसी को भेदभाव करना, अपने हक से, अपने राइट से दूर रखना, ऐसा अब कभी भी नहीं होगा. वो मैं यहाँ से अब आप सबको वादा करता हूँ. द सन shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom resign. God bless Africa. अब वो कहते हैं कि so never set on a glorious human achievement. अब जो ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट माने हमने जो ये नया डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया है उसको एक ग्रेट अचीवमेंट, वो अभी परमानेंट माने हमेशा के लिए वो यहाँ डेमोक्रेसी राज करेगी. कोई भी भेदभाव, कोई भी व्यक्ति से अलग से ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ भी हम यहाँ अपने देश में नहीं करेंगे. फ्रीडम रिजाइन माने यहाँ फ्रीडम को ही रूल करने दो, सब अपने हिसाब से फ्री है. और गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका की रक्षा करे. Few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carried road in perfect formation over the Union building. तो अब वो क्या कहते हैं, a few moments, थोड़ी ही समय के बाद, थोड़े ही टाइम के बाद, array, a word is given you. Array, what is the meaning of array? means impressive display. वो क्या करते हैं कि हम थोड़ी ही देर में सभी जेट्स, हेलीकॉप्टर, वो सब उड़ते हुए देखते हैं. और क्या करते हैं वो सब जेट्स, तो को गवर्नमेंट को सलामी, माने जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ बन रही है उसको सलामी करते हैं. वो पूरे बिल्डिंग को कवर करते हैं और ये सब देख के सब लोग ऑफ माने सरप्राइज. द वर्ड इज गिवन इन द सेकेंड लाइन. ऑ एज ए स्पेक्टेकुलर एरे वी हैव डिस्कस्ड इन इम्प्रेसिव डिस्प्ले. ऑ माने सरप्राइज, माने हम लोग ऐसे सरप्राइज से देखते रहते हैं कि what a great performance done by the troops of helicopters and jet planes of the African army. वो सब देख के सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं. It was a very great occasion for all the people who were present there.
It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये अभी बता रही कि ये जो प्रोसेशन हो रहा था, ये जो पूरा सेरेमनी ये नेवी के हिसाब से वो आर्मी नेवी हेलीकॉप्टर से ये सब कर रहे थे, वो किसके लिए थे? तो वो अपनी लॉयल्टी, वो डेमोक्रेसी के प्रति, माने कि हम लोग अब आपकी गवर्नमेंट को वफादार रहेंगे, वो आपको सल्यूट कर रहे थे और अपनी लॉयल्टी प्रूव कर रहे थे. Only moments before, the highest generals of South Africa, Defense Force, and police, their chest badged with ribbons and medals for the day gone by, saluted me and pledged their loyalty. मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स, पुलिस फोर्स, उन सब के हेड के जिनके यूनिफॉर्म के ऊपर रिबन्स और मेडल्स लगे थे, उन सब ने मुझे सल्यूट किया और मेरी गवर्नमेंट के प्रति वफ़ादार रहने की, मेरी मैंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रति वफ़ादार रहने का प्रॉमिस किया. ये सब अंदर मेंशन क्यों किया है कि भाई देयर चेस्ट बैचेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स, माने ये जो चीफ होते हैं वो कई बार बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ करते हैं और उनमें जो जीतते हैं फिर गवर्नमेंट उन्हें मेडल्स देती है, उनको सम्मानित करती है. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted me but arrested me. I was not unmindful word. The word is given unmindful. That means aware of. मुझे ये सब पता है कि अभी थोड़े ही समय पहले, थोड़े ही साल पहले, जब यही ऑफिशियल्स मुझे अरेस्ट कर रहे थे. फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of a new South African flag. अभी chevron, what is the meaning of chevron? Chevron means a zigzag pattern, जैसे V shape यूँ 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 हम लोग करते हैं, that is called chevron. वो शेवरॉन जेट्स थे, माने जेट्स वो शेवरॉन पैटर्न में अरेंज थे. वो क्या कर रहे थे? तो अलग अलग कलर से धुआं छोड़ रहे थे. और वो जो धुआं कौन से कलर का था कि वो जो साउथ अफ्रीका के फ्लैग के अंदर जो कलर रहते हैं वो वही कलर वो लोग छोड़ रहे थे. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem and the vision of whites singing Naksoi Siskelel Africa and the blacks singing Die Stem, the old anthem of Republic. तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो ओकेजन के अंदर सभी लोग थे वो सब आज दोनों नेशनल एंथम गाने वाले थे. दोनों नेशनल एंथम माने वहाँ पे हमने जैसे अपार्टहेड पॉलिसी डिस्कस किया तो वहाँ पे दो प्रकार के, एक वाइट सुप्रीमेसी और एक और डार्क लोग, तो उन दोनों के नेशनल एंथम भी अलग अलग थे. और आज के दिन पे वो दोनों नेशनल एंथम इस सेरेमनी में गाए जाने वाले थे. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the word by heart. माने ये दोनों एंथम जो थे वो सभी लोगों को आते नहीं थे. जो वाइट लोग थे उनको उनका नेशनल एंथम आता था, जो डार्क लोग थे उनको उनका नेशनल एंथम आता था. मगर आज यहाँ पे दोनों तरह के लोग, वाइट एंड ब्लैक दोनों तरह के लोग एक दूसरे के जो नेशनल एंथम है उसको रिस्पेक्ट देने का
ट्राई कर रहे थे और वो लोग दोनों नेशनल एंथम बाय हार्ट कर लेंगे कुछ ही टाइम में। On the day of inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. मैंने उस दिन जो इनोग्रेशन का दिन था उस दिन ओवरवेल्म्ड मीन्स माने उन्हें पुरानी यादें आ रही है। वो सब जब उसके एमेंसिपेशन वो अपार्टहेड पॉलिसी के अपोज में जो जब काम कर रहे थे, वो प्रिजन में थे, उनके जो साथी थे, वो सब उनको याद आ रहा है। In the first decade of 20th century, a few years after a bitter Anglo-Boer war and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences, erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. Anglo-Boer War. This word is given. What is the meaning of that? That English and African उन दोनों के बीच में एक वॉर हुआ था। कब हुआ था? तो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट डिकेड? मीन्स 1900 to 1910। वो जो डिकेड है कलेक्शन ऑफ 10 ईयर, वो फर्स्ट डिकेड कहते हैं। और वो कब था? तो नेशनल मंडेला के जन्म से पहले ये वॉर हुआ। और जो ब्रिटिश लोग थे, जो वाइट सुप्रीमेसी लोग थे, जो लोग जिन्होंने वॉर किया था, उनके अंदर अफ्रीकन लोगों की हार हुई और उन्होंने ये जो इनह्यूमन डार्क स्किन वाइट स्किन का डिस्क्रिमिनेशन था वो अप्लाई कर दिया। कब? तो उनके बर्थ से पहले। और कहाँ कर दिया? पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, उन्हीं की लैंड के ऊपर। माने अफ्रीका जो है वो ब्लैक स्किन लोगों की कंट्री है, तो उन्हीं देश, उनके ही देश में, उनके ही ऊपर ये अपार्टहेड का उन्होंने स्ट्रक्चर अप्लाई कर दिया। The structure they created formed the basis of on the hardest, most inhuman society of the world has ever known। ये जो स्ट्रक्चर था, कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? कि जो अपार्टहेड स्ट्रक्चर से जो पूरी सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम हो रहे थे और उन्होंने जो कर रहे थे, वो जो स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर पूरा, वो कैसा बता रहा है? तो वो हार्शेस्ट, माने सबसे हार्श है, सबसे बुरा है, सबसे इनह्यूमन है, ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने अप्लाई किया था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8 decades as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all peoples, regardless of the color of their skin। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि भाई ये जो एप्लीकेशन हुआ था वो 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में हुआ था और अभी 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड चल रहा है। लास्ट डिकेड माने 1990 to 2000। उस टाइम में ये 1994 10th में ये जो उन्होंने एप्लीकेबल किया था वो पूरा सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर। ये पूरा सिस्टम बंद कर दिया है और उसकी जगह पे रिप्लेस्ड बाय रिकॉग्नाइज राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल। माने यहाँ पे अभी सभी लोगों को सभी राइट्स मिलेंगे रिगार्डलेस, माने कोई भी प्रकार का रिगार्ड यहाँ से कंसर्न नहीं करेगा, कोई भी कलर, कोई भी स्किन, वो कुछ भी देख के कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे, यहाँ के देश में, यहाँ के लोगों के साथ किया जाएगा नहीं। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of people whose suffering and courage can never be counted or repaid। I felt that day
as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो पूरे हिस्ट्री को याद करते हैं। वो हिस्ट्री कैसी है कि वो अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस से भरी हुई है। हजारों लोगों ने अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया है, उसके बाद ये दिन आया। वो सब याद करते हुए वो कहते हैं कि मुझे जिन जिन लोगों ने बहुत दुख झेले हैं, और उन सब के कारण ही हमको ये आज का दिन देखने मिलता है। अ पैट्रियट वर्ड इज़ यूज्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैट्रियट? वी माइट हैव हर्ड पैट्रियोटिक सॉन्ग। पैट्रियट मीन्स अ पर्सन who love the own country, the motherland, that is called patriot. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them, and they were not able to see what their sacrifice had wrought. What is the meaning of wrought? The last word wrought means to achieve, to bring. कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत दुखी हूँ कि आज के दिन के लिए इतनी मेहनत जिन लोगों ने की है और हमने ये आज का दिन देखा है, वो सबको याद करते हुए मैं उन लोगों का बलिदान भी साथ साथ में याद करता हूँ। और मुझे इस बात का भी दुख है कि मैं उनको उनके प्रति आभार अभी प्रकट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब जो हुआ है वो उन्हीं के सेक्रीफाइस के कारण पॉसिबल हो सका है। लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, ये सेक्रीफाइस कैसे हुआ है? वो लॉन्ग एंड नोबल लाइन्स एंडेड, ये सब एंड में उनके स्पीचेस में ये सब कहते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. वो कहते हैं कि ये जो अपार्थाइड का पूरा पॉलिसी था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का पूरा पॉलिसी का पूरा जो टाइम था, उस समय में हमने साउथ अफ्रीका के अंदर ऐसे लोगों को देखा है वुंड वो के जो जिससे उनको बहुत डीप, बहुत ऊंडे घाव हुए हैं, और उन सब घावों को रिकवर करने के लिए बहुत टाइम भी चला जाएगा, क्योंकि उनसे लोगों को बहुत परेशानी हुई है, बहुत सारे लोग दुखी थे, उनको बहुत सफ़र करना पड़ा है, तो ये सब रिकवर करने में उनको टाइम भी मिलेगा। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Toms, the Walter Sissulus, the Chief Luthulus, Yusuf Dado, and Bram Fishers, the Robert Subakos of our time. Men such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. तो उसका एक अनइंटेंटेड इफ़ेक्ट, ये सब जो आप देख रहे हैं वो अफ्रीका के ग्रेट पैट्रियट्स थे जिन्होंने बहुत सारा सेक्रीफाइस दिया है उनके देश को फ्री करने के लिए। किससे? तो ये अपार्थाइड पॉलिसी से फ्री करने के लिए। अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनइंटेंडेड? तो ये जो पॉलिसी थी उसकी एक अनइंटेंडेड माने बिना कोई इंटेंशन की एक एक्स्ट्रा ये भी बेनिफिट मिला कि हमको ऐसे लोग मिले कि जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बहुत ज़्यादा देशभक्त थे। उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने बहुत ही ज़्यादा करेज था, विजडम था, जनरसिटी था। और वो सब कैसे हुआ? तो ये अपार्थाइड पॉलिसी थी, उसी के कारण उनको
ये ग्रेट पर्सनालिटीज मिली। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character. वो कहते हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब किसी को ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा ऑप्रेस किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, तभी किसी इंसान की सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, इतनी अच्छी क्वालिटीज़ बाहर आ सकती है। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइट बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। तो हम लोग सब ये जानते हैं कि साउथ अफ्रीका वो मिनरल्स में बहुत रिच हैं। वो यहाँ पे दो चीज़ें बताते हैं कि एक तो हमारे पास बहुत ही मिनरल्स है, वी आर रिच इन मिनरल्स। कहाँ पे है, बीनीथ द सॉइल, वो मिनरल्स है वो ज़मीन के अंदर है। पर मुझे आई हैव ऑलवेज नोन दैट, मुझे ये हमेशा से पता रहा है कि हम लोगों की सही जो रिचनेस है, सही जो हमारी संपत्ति है, जो वेल्थ है, वो क्या है कि हमारे लोग, ये पीपल कैसे लोग हैं, फाइन के अच्छे लोग हैं, ट्रूअर सच्चे लोग हैं, एंड कैसे है तो अच्छे वो प्योर डायमंड से भी अच्छे हैं। वो जो डायमंड पत्थर के होते हैं उनसे भी हमारे जो इंसान है, हमारे जो लोग हैं, हमारी कंट्री के जो पीपल है, वो स्टोन के डायमंड से भी अच्छे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. वो कहते हैं कि उनकी स्ट्रगल में उनके कॉमरेड्स माने उनके जो साथी थे, उनसे उनको पता चला कि व्हाट इज़ अ स्ट्रगल, इन द स्ट्रगल कि द मीनिंग ऑफ करेज, वो स्ट्रगल के अंदर करेज क्या होती है, करेज का रियल मीनिंग उनको पता चला। और साथ में वो ये देखते हैं कि कोई भी एक आइडिया के लिए लोग अपनी जान भी दे देते हैं वो आइडिया फुलफ़िल करने के लिए, और उसमें उतना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको किसी भी चीज़ की वो फ़िक्र रहती नहीं है। यहाँ वो ये बता रहे थे कि उनके साथ के जो लोग थे उनके मन में, उनके दिमाग में ये अपार्टहेड पॉलिसी रिमूव करने के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, ये आइडिया अचीव करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि वो कुछ भी और कुछ भी सुन नहीं पा सकते थे, सिर्फ एक ही उनका गोल रहता था। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that I defies the imagination. The word is resilience. What is the meaning of resilience? Resilience means ability to deal with hardships and recover from its effect. मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो कितने भी दुख, कितना भी टॉर्चर सहन कर सकते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ तोड़ नहीं पाती, वो किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी टॉर्चर से रिकवर हो जाते हैं। That defies the imagination means it's beyond our imagination. माने that defies the imagination, वो उसका मतलब क्या है कि मीन्स हम लोग ये इमेजिन ही नहीं कर पा सकते कि वो लोग कौन सी लिमिट तक सहन कर सकते हैं। द करेज दैट वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, वो अब अपने हिसाब से कि भाई करेज क्या है वो बता रहे हैं, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स द फियर। वो
ट्रायम्फ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रायम्फ? ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री, टू विन। वो लोग बताते हैं कि भाई करेज क्या है, हिम्मत क्या है। ऐसा नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर, कि भाई डर नहीं है तो करेज है, ऐसा नहीं है। बट अ ब्रेव मैन इज़ नॉट हु, ब्रेव मैन वो नहीं है कि हु डज नॉट अफ्रेड, कि जो कभी डरता नहीं। बट ही, मगर ब्रेव वो है हु कॉन्क्वर्स दैट फियर, कि जो वो फियर है उसके ऊपर कॉन्क्योर माने उसके ऊपर जीत लेता है, उसी को सही मायने में ब्रेव कहा जाता है। नो वन इज बॉर्न hating another person because of the color of the skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human hearts than its opposite. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अपने जन्म से ही किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, पर उसको ये सिखाया जाता है कि भाई ये धर्म से अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, इसका स्किन कलर अलग है। तो ये हम सोसाइटी के द्वारा उसको सिखाया जाता है। उसके साथ साथ ये कहते हैं कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन टॉट टू लव। लोगों को ये सिखाया जाता है कि भाई आप नफ़रत करो ऐसे लोगों से, और अगर इन्हीं लोगों को नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो फिर प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। दे कैन टॉट टू लव, क्योंकि क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्यार तो और ज़्यादा नेचुरली अंदर से बाहर आता है देन इट्स ऑपोजिट, माने हेट से ज़्यादा प्यार मोर नेचुरली हमारे बाहर आ सकता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is flame that can be hidden but never extinguished. Grimmest time, what is the meaning of grimmest time? Means toughest, the hardest time. जब हमारा सबसे ग्रीमेस्ट टाइम चल रहा था, सबसे टफेस्ट टाइम कहाँ पे? तो इन प्रिजन, जब जेल में हम होते थे तब हमको टॉर्चर, अत्याचार होता था, और तब भी मैं किसी एक गार्ड के चेहरे पर इंसानियत देख लेता था तो फिर मैं श्योर हो जाता था कि अभी भी जो ह्यूमैनिटी माने इंसानियत जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई, और उनको हिम्मत मिलती थी। मुझे उन सब चीज़ों से हिम्मत मिल सकती थी कि अभी भी हमारे यहाँ इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है, सिर्फ एक गार्ड के चेहरे पर से। फिर साथ में वो कहते थे कि मैन्स गुडनेस, जो इंसान की अच्छाई है वो एक मशाल है, एक फ्लेम है, वो हिडन, वो हाइड हो सकती है, मगर वो कभी भी जो अच्छाई है वो ख़त्म नहीं हो सकती है। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. तो जब वो कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा जब पता चला कि माई बॉयहुड फ्रीडम माने जो मेरी बचपन की जो आज़ादी थी, दैट वाज एन इल्यूज़न। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इल्यूज़न? इल्यूज़न मीन्स समथिंग दैट अपीयर्स बट नॉट, तो ऐसा लगता है कि भाई हमें ये है मगर हमारे पास ये होता नहीं है। जब वो बड़े हुए
आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, तो उनको पता चला कि ये इल्यूज़न है, ये आज़ादी है, और मैं नहीं, और उसके बाद उनकी आज़ादी की भूख शुरू हुई, हंगर फॉर द फ्रीडम। तब उन्हें ये पता चला कि ये अब चीज़ हमें चाहिए और ये चीज़ हमारे पास नहीं है। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. As a student, जब मैं बच्चा था तब मुझे एक लिमिटेड फ्रीडम चाहिए थी कि भाई मुझे जो करना है वो करने दो। मुझे आई वांटेड टू फ्रीडम कौन सी टाइप की, कि भाई मुझे बाहर रहना है तब तक मैं रह सकता हूँ। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि भाई तुम 10 बजे घर आ जाओ, तो 10 बजे के बाद घर नहीं आ सकते। तो ये जब जो रिस्ट्रिक्शन थे उनसे ही मुझे फ्रीडम चाहिए थी। मुझे जो पढ़ना है वो मुझे पढ़ सकूँ, ये सब फ्रीडम उनको राइटर्स को तब चाहिए थी। लेटर अ यंग मैन इन जॉनिसबर्ग, आई yearn for the basic honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to obstruct in a lawful life. तब जब मैं यंग हुआ, हम लोग जॉनिसबर्ग में रहते थे, तब उनकी लाइफ में बहुत सी हार्डशिप आने लगी और तब उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये फ्रीडम चाहिए कि मैं कोई काम कर सकूं, मैं अपनी चॉइस से अपनी शादी कर सकूं, अपने पैसे कमाकर अपने पास रख सकूं, और जब तक मैं लॉफुली बिहेव कर सकता हूँ तब तक मुझे कोई भी परेशानी ना आए। जैसे अपार्टहेड पॉलिसी के अंडर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन से आप ये काम नहीं कर सकते, इससे शादी नहीं कर सकते, आपकी लिमिटेशंस थी। तो ये सब मुझे अब अपनी फ्रीडम के अंदर चाहिए था। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली आई वॉज फ्री, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तब मुझे बाद में ये पता चला कि सिर्फ मैं ही फ्रीडम के विदाउट नहीं जी रहा हूँ, मेरे सिस्टर्स, मेरे ब्रदर्स और सभी वो लोग जो डार्क स्किन वाले हैं, वो सभी लोग फ्रीडम के बिना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ जी रहे हैं। तब उन्हें पता चला कि मुझे ये करना चाहिए और अपार्टहेड पॉलिसी को डिस्ट्रॉय, एबॉलिश करने का उन्होंने डिसीजन लिया। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और उसी टाइम में मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम का जो पार्टी है वो ज्वाइन कर दिया और अपनी सोसाइटी के अपने लोगों माने जो डार्क स्किन के लोग थे उन सब के लिए आज़ादी के लिए लड़ने का हमने डिसीजन लिया। It was this desire for the freedom of my people who live their lives with dignity and self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law abiding attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without home, and that forced a life loving person to live like a monk. और इन सब के कारण अगर उन सब ये सब बात हम ध्यान में रखें तभी हमें ये पता चला कि मुझे ये सब लेबल मिले हैं। कैसे कि भाई मैं बोल्ड हूँ, क्रिमिनल हूँ, मैं मॉन्क की तरह ज़िंदगी जी रहा हूँ, मगर इन सब का रीज़न क्या था
कि भाई मुझे फ्रीडम चाहिए थी, और इसी फ्रीडम स्ट्रगल ने मुझे बोल्ड बना दिया, मुझे क्रिमिनल बना दिया। क्रिमिनल माने वो वाइट सुप्रीमेसी गवर्नमेंट से लड़ रहे थे तो उनको रेबल डिक्लेयर कर दिया, और एक मुझे अपनी फैमिली छोड़नी पड़ी। मैं ऐसा इंसान था कि जो अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करता था, अ लाइफ लविंग पर्सन, तो वे मैं आज मॉन्क बन रहा हूँ। तो ये सब किसके कारण हुआ है? मैं पहले से ही ऐसा नहीं था। ये मुझे आज़ादी का स्ट्रगल के अंदर जो मुझे हार्डशिप हुई है, और मैंने अपने देश के लोगों को जो प्रायोरिटी दी है, इस स्ट्रगल में अपना लाइफ पूरा डिवोट किया है, इन सब कारणों से मैं अब ऐसा हो गया हूँ। I am no more virtuous or self-sacrificing than a next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं उतना ज़्यादा वर्चुअस नहीं हूँ, उतना सेक्रीफाइस वाला इंसान नहीं हूँ, मगर जब हमें ये पता चला कि हमारे लोग, हमारे सोसाइटी के लोग के पास फ्रीडम नहीं है, तो वो तब मैं खुद भी अपनी फ्रीडम को भी इंजॉय नहीं कर सकता हूँ। जब मेरे लोग फ्री नहीं हैं तो मैं अपनी फ्रीडम कैसे इंजॉय कर सकूँ? फ्रीडम एंड इनडिविजिबल, द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, एंड द चेन ऑन ऑल ऑफ देम वर द चेन्स ऑन मी। माने जब मेरे कोई भी इंसान पर, मेरी ट्राइब की, मेरी सोसाइटी के, मेरे कोई भी लोगों पर कोई भी चेन है, चेन मीन्स रिस्ट्रिक्शन, तो वो रिस्ट्रिक्शन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर है, और अगर कोई एक भी इंसान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है तो मैं अपनी फ्रीडम वो फील नहीं कर सकता, एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। लेखक, राइटर जो अपने आप को पूरी सोसाइटी से अटैच करके रखते हैं कि भी एक भी पर्सन, तो टू द लास्ट कॉर्नर ऑफ माई कंट्री इफ़ एनी वन इज़ लिविंग विथ रिस्ट्रिक्शन, एंड देन आई कैन नॉट एन्जॉय माई फ्रीडम। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. राइटर एक बहुत अच्छी बात करते हैं, उनको दो वर्ड यहाँ पे यूज़ किए, द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑप्रेसर? ऑप्रेसर माने जो ऑप्रेस करता है, और ऑप्रेस्ड माने जो ऑप्रेसर से ऑप्रेस होता है। वो मीन्स ब्लैक एंड वाइट, बोथ द पीपल विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द रिस्ट्रिक्शन, दे बोथ विल फ्री फ्रॉम आइडियल सोसाइटी। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं कि भी ब्लैक और वाइट दोनों फ्री होंगे, लिबरेट होंगे? तो ब्लैक पर्सन तो रिस्ट्रिक्शन के साथ जी रहे थे, मगर जो वाइट पर्सन थे वो भी अपने एक माइंड के अंदर प्रेजुडिस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेजुडिस? प्रेजुडिस मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी रीज़न। हम कोई भी कारण के बिना किसी को नापसंद करें तो उसको प्रेजुडिस कहते हैं। तो वाइट लोग थे, वो कौन सी प्रेजुडिस के अंदर होते थे कि वो हेट्रेड के अंदर, और उनको हमें हेट्रेड माने नफ़रत से दूर करना है, नफ़रत से फ्री करना है, और तभी हम लोग एक अच्छी सोसाइटी फॉर्म कर पाएंगे। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, just as surely as I am not free when my freedom is
taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो राइटर क्या कहते हैं कि जो लोग दूसरों की आज़ादी छीनते हैं और जिसकी आज़ादी छीन जाती है, ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड, वो दोनों ही फ्री नहीं है। वो दोनों ही इंसान क्या है? रॉबर्स है, लुटेरे हैं, चीटर है। किस चीज़ के? कि भाई जिसने आज़ादी छीनी है वो आज़ादी का चीटर है, वो आज़ादी का रॉबर्स है। और जो अपनी आज़ादी छीनने देता है, उनको परमिशन देता है, वो भी एक रॉबर्स है कि भाई वो उनको उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि भाई आप हमारी आज़ादी नहीं ले सकते हैं। तो इन दिस वे द राइटर इज टेलिंग अस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आवर विल पावर कैन डू एनीथिंग। ये चैप्टर हमको इस टाइम क्यों दिया है कि हम स्टैंडर्ड 10 में स्टडी कर रहे हैं, तो वी माइट हैव सम ऑब्स्टिकल्स इन आवर लाइफ, कि हमको कुछ भी परेशानी आ सकती है कोई स्टडी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर। तो उन सब परेशानियों को हमें डील कैसे करना है, हमें हैंडल करना है। कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि जिसको फेस किए बिना ही हम लोग हार जाएं। तो coming to the conclusion, let me tell you something that the writer wanted to say this throughout this chapter. Freedom is very important for all. किसी भी इंसान की फ्रीडम बड़ी इम्पोर्टेंट होती है इसके लिए। एंड टू गेट फ्रीडम वी मस्ट हैव अ करेज टू गेट इट एंड नॉट टू स्नैच्ड बाय एनीवन। किसी और को हमारी फ्रीडम ले लेने की परमिशन भी हमें नहीं देनी चाहिए। Friends, thank you very much. I hope you understand the chapter. And if any query is there, feel free to write in the comment section. For more chapters, subscribe my channel. There are many important grammar topics related to your study, and that will be very helpful to you. Thank you very much, dear.